کے مزار مبارک کے ساتھ ہی آرام فرما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی حضور کا نام ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنا ہے، اور جب بھی حضور کی کسی صحابی کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب کسی صحابیہ کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو بھی بات آپ کو سمجھ آ جائے تو ایک بار سبحان اللہ بول دیجیے۔ سبحان اللہ بولنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اور دنیا کا عظیم شان قبرستان شریف جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے انشاءاللہ رائٹ سائڈ پر مسجد اجابہ آنے والی ہے۔ اچھے سے دیکھیے، مسجد اجابہ، اجابہ مانا قبولیت والی جگہ، اور یہ مسجد اجابہ ہے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ فرمایا قیامت کے دن جب ہم اللہ رب العالمین کے اذن سے اٹھیں گے، ہمارے دائیں صدیق ہوگا، بائیں عمر ہوگا، ہم سب سے پہلے اہل بقیع کو اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے پڑوس والے ہیں۔ اور صحابہ کرام اکثر دعائیں کرتے، یا اللہ جنت البقیع اور مدینہ کی موت نصیب فرما۔ یہ بہت ہی عظیم خواہش ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے ہم اٹھیں گے، اور ہمارے پڑوس والے ہیں اہل بقیع، ہم ان کو سب سے پہلے اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں جنت البقیع نصیب فرمائے۔ اور جنت البقیع، اور یہ ہمارے رائٹ سائڈ پر ایک دور سے مینار نظر آتا ہے، ایک مینار والی مسجد ہے، یہ مسجد ابی ذر ہے۔ رائٹ سائڈ پر، ہمارے دائیں سائڈ پر یہ مسجد حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ اور مسجد ابو ذر غفاری، اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اور جنت البقیع میں حضور علیہ السلام کے صاحبزادیاں آرام فرما ہیں، اور جنت البقیع میں حضور کی 9 ازواج مطہرات آرام فرما ہیں، اور جنت البقیع میں داماد مصطفیٰ سیدنا عثمان غنی ذی النورین بھی آرام فرما ہیں، اور جنت البقیع میں حضور علیہ السلام کے صاحبزادیاں اور حضور علیہ السلام کے 10,000 سے زائد صحابہ کرام آرام فرما ہیں، اور جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام بھی آرام فرما ہیں، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ جلیل القدر بڑے بڑے عظیم صحابہ یہاں آرام فرما ہے، دنیا کا بھی عظیم الشان قبرستان شریف ہے۔ اور فرمایا تابعین تبع تابعین کے بعد خوش نصیب امت مسلمہ میں سے نیک لوگ بھی یہاں آرام فرمائے، جنہوں نے اپنی اپنی قسمت کو عظیم پایا، اور یہاں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی، انہیں جنت البقیع نصیب ہوئی۔ اور جنت البقیع جو مسجد اجابہ دیکھیے، اپنی مسجد اجابہ میں عظیم الشان تاریخی مسجد ہے، جس میں ہمارے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، اللہ رب العالمین نے مجھے امت کے لیے خوشخبری عطا فرمائی، اس لیے شکرانے کے سجدے ادا کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا جبرائیل امین تشریف لایا، اللہ کا سلام پیش فرمایا، فرمایا حبیب جو بھی آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرما دے گا، اللہ 10 گناہ معاف فرما دے گا، اللہ 10 درجات بلند فرما دے گا۔ اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ فرمایا یہ آیات بینات کا شان نزول بھی اسی مسجد ابو ذر غفاری میں ہے، یہ تاریخی مسجد عظیم شان مسجد ابو ذر غفاری۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے در کی حاضری اور اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً کوئی شخص کہ میرے پاس مال تھا، دولت ہے، میں یہاں آ گیا، نہ ہی مال کے کمال ہے، نہ ہی دولت کے کمال ہے، بس رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے در کی حاضری کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ سب کرم کے ہیں فیصلے، یہ سب نصیب کی باتیں ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج یا عمرہ کرے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسا اس کو معاف فرما دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی مکہ مکرمہ آئے، حج یا عمرہ کے لیے اور پھر میرے پاس نہ آئے تو اس نے مجھ پر ظلم اور زیادتی فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ وہ ادب کا مقام ہے، وہ جگہ ہے جس جگہ کو خود رب تعالیٰ نے محبوب فرمایا، پسند فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح کو، 70,000 ملائکہ شام کو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ جو فرشتے ایک بار آ جائیں قیامت تک ان کی باری نہیں آنی، وہ نہیں آ سکتے۔ اب یہ ہماری رائٹ سائڈ پر لیفٹ سائڈ پر دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جبل رومات، کیا نام ہے اس کا؟ جبل رومات، اور یہ نہر زبیدہ ہے۔
जो ताइफ से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से शाम तक जा रही है। इसकी भी आपको तफसील बताऊंगा। ये जबल रुमात छोटी सी पहाड़ी है। यहाँ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान ग़ज़वा उहद पर अब हम आ गए हैं, तो यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 बहादुर सहाबा मुकर्रर फरमाए, जमा फरमाए, तीर अंदाज सहाबा। और फरमाया ग़ज़वा उहद सबसे पहला जो ग़ज़वा है वो ग़ज़वा बदर है, जो इस्लाम की अजीम और सबसे बड़ी जंग हुई, बड़ा ग़ज़वा हुआ, वो ग़ज़वा बदर है, जहाँ 313 सहाबा थे और 1000 से ज़्यादा मुशरिकीन मक्का। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब के सहाबा के लिए अल्लाह ने आसमानों से फरिश्तों की जमात नाज़िल फरमा दी और वहाँ सबसे ज़्यादा मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का वासिल जहन्नम हुए। और उस बदले में ये दूसरी ग़ज़वा उहद हुआ। जंग बदर सन 2 हिजरी को पेश आया, ये सन 3 हिजरी को पेश आया, शिवारुल मुकर्रम के महीने में। तो फरमाया जब मुशरिकीन मक्का ग़ज़वा बदर का बदला लेने के लिए यहाँ पर उहद पर आए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने मशवरा किया, या रसूल अल्लाह क्या होना चाहिए। तो उनमें से सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उहद के दामन में जाके जंग लड़ें तो बेहतर है। इन सहाबा कराम में से कुछ मुनाफिकीन थे जो अब्दुल्ला बिन उबई के चाहने वाले थे, तो उन्होंने कहा नहीं हम मदीने में रहकर जंग लड़ेंगे। लेकिन सहाबा कराम ने इसकी, या रसूलल्लाह यहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं वगैरह वगैरह, लिहाजा हम उहद के दामन में जाके जंग लड़ेंगे। ये हमारे राइट साइड पर सारा उहद का पहाड़ है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबलुन उहदुन व युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया ये उहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम उहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। फरमाया मोहब्बत का कोई ना कोई सिला होता है, क्या इस पहाड़ को भी सिला मिलेगा। फरमाया हाँ ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और ये जन्नती पहाड़ है, जो हमसे मोहब्बत करे वो जन्नत में जाएगा। लिहाजा ये जन्नती पहाड़ है और जन्नत के 8 दरवाजे, ये किसी दरवाजे पर मौजूद होगा, ये जन्नत में मौजूद होगा और जन्नत में आने वालों का, मोमिनीन का, मुसलमानों का, जन्नतियों का ये इस्तकबाल करेगा। वो अजीम शान पहाड़ है और पहाड़ की लंबाई तकरीबन 15 मील है, चौड़ाई 3 मील है और 350 से 400 फुट बुलंदी पर है। ये अजीम शान दुनिया का वाहिद पहाड़ जो जन्नती पहाड़ है। और फरमाया हेलीकैप या मैप के जरिए इस पहाड़ की पिक्चर तस्वीर लें तो जमीन पर ये पहाड़ इसमें मोहम्मद बना हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अजीम शान पहाड़, जन्नती पहाड़। अब हम सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबा इकराम जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, उनकी मज़ारात पर हाज़िरी सलाम पेश करने के लिए यहाँ आए हैं। इंशाअल्लाह सामने भी मज़ारात है, आपने सलाम पेश करना है और दुआएं करनी है और इंशाअल्लाह वापस गाड़ी में आ जाना। हमारी कोशिश होती है कि ज़ियारतें भी सब अच्छे से हों और वापस भी हम नमाज ज़ोहर की मदीना मुनव्वरा अदा करें, मस्जिद नबी अदा करें। मक्का मुकर्रमा में एक नमाज अदा करें, अल्लाह 1 लाख नमाज का सवाब देता है। मदीने में एक नमाज अदा करें, 50,000 नमाजों का सवाब है। लेकिन ये 1,50,000 हमारी गिनती है, कलेक्शन है। अल्लाह की रहमत इससे भी ज़्यादा, इससे भी आफा वाला है। आपने गाड़ी नंबर लाजमी नोट कर लेना है। उसके अलावा सलाम पेश करना है। इंशाल्लाह यहाँ 10 से 15 मिनट का स्टे होता है सलाम पेश करने के बाद। और ये सामने मज़ार है, 2 मज़ार हैं, एक हमारे राइट, एक लेफ्ट। जो राइट है सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जो लेफ्ट है उसमें हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन जाश, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम शक्ल मुसअब बिन उमैर जो कि अंसार कबीला से मक्का मुकर्रमा से ग़ज़वा बदर में शरीक ना हो सके, ग़ज़वा उहद में शरीक हुए और अब्दुल्ला बिन जहाश और दोनों नफूस क़ुद्सिया एक ही मज़ार में आराम फरमा है। तो यहाँ हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहाश, और इसमें जो है वो इज्तिमाई कब्र बनी हुई है। तमाम शहादा को एक ही कब्र में ये आराम फरमाए। सलाम पेश कर लें, इंशाअल्लाह दुआ भी कर लें। तीन चीज़ें आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए बता रहे हैं। 4 मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, 2 ये और 2 वो आपको नज़र आ रहे हैं ना। ये 4 मीनार ये वो जगह है जिसमें शुरू में जो मस्जिद कुबा की जो बुनियाद रखी गई ना, ये वो वाली जगह, कितनी जगह पे इसकी बुनियाद रखी गई, बाद में इसकी चोटी होती है बड़ी। अच्छा, दूसरी चीज़ है जब अल्लाह के नबी हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए थे ना, ऊँची करते ना, वो ऊँची जो आपको लाइटें नज़र आ रही है ना, लाइटें वो ऊँची जगह पे नीचे आके बैठी थी।
ये दो चीज़ें हैं जो आपके इल्म में इजाफे के लिए मैंने बताई, जो मुझे मालूमात थी, तो दो चीज़ें आपको मैंने बताई। एक और बैठी थी मुझे वो जो आगे लाइट नहीं चल रही थी नीचे वाली बता रही थी। अच्छा, और ये चार जो सतून है मदीना से हिजरत करके आए। जब मक्का से हिजरत करके मदीना। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जामिया खंदक के नाम से मस्जिद है जो कि अभी बनाई गई है, तकरीबन 14-15 साल पहले 1428 हिजरी में ये मस्जिद बनाई गई है जामिया खंदक के नाम से। और इसके सामने जबल सिलाह पहाड़ है और जबल सिलाह के दामन में ये ग़ज़वा खंदक पेश आया। और हमारे राइट साइड पर मुशरिकीन मक्का थे और जहाँ गाड़ी चल रही यहाँ पर दामन में, इस पहाड़ के दामन में सहाबा कराम थे। और इस ग़ज़वा में 3000 सहाबा कराम थे। और ये जो जामिया खंदक के नाम से मस्जिद है, यहाँ पर दो मस्जिदें थी, एक मस्जिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर, दूसरी मस्जिद मुआज़ बिन जबल। उन दो मसाजिद को ख़त्म करके एक मस्जिद बनाई। अब हमारे राइट साइड पर ये मस्जिद हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मस्जिद फारूक आज़म तारीखी मस्जिद, ये उसी दौर की है, इसकी दीवारें वगैरह उसी दौर की हैं, यानी कि छतें वगैरह बोसीदा हैं लेकिन दीवारें उसी दौर की हैं, तारीखी खैमे को मस्जिद की शक्ल दे दी गई। और ये मस्जिद हज़रत उमर फारूक आज़म। हमारे बिल्कुल उल्टे साइड पर सामने पहाड़ी के ऊपर छोटा सा खैमा है, ये हज़रत अली बिन मुर्तज़ा शेर खुदा आपका ये खैमा है। जंग के दौरान ये खैमे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जंग में बगैर कत्ल वगैरत के फतह अता फरमाई। हमारे उल्टी साइड पर ये 2-2.5 फुट का छोटा खैमा है, ये खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये आपका खैमा है। दौरान ग़ज़वा खंदक के दौरान तमाम लेडीज़ एक ही खैमे में क़याम पज़ीर हुई। और अब हमारी बैक फर्स्ट यानी कि सामने और पीछे ये यहाँ खंदक थी। हमारे दाएं साइड पर सहाबा कराम, बाएं साइड पर मुशरिकीन मक्का। और ये 10,000 से ज़ायद लोग थे मुशरिकीन मक्का। सहाबा कराम सिर्फ 3,000 थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजीम फतह अता फरमाई। जब खंदक खोदी गई तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा आप रावी हैं, फरमाते हैं कि अब्दुदु यहूदी था, उसने ऐलान किया हल मिन मुबारज़िन, तो है जो हमसे मुकाबला करे, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा बुत उज़्ज़ा भी है, हमारा बुत लात है, हमारा बुत मनात है, हमारे बड़े बड़े बुत हैं, 360 बुत हैं, तुम्हारा कोई बुत नहीं है, तुम हमसे कैसे लड़ सकोगे। तो फिर हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने आपने जवाबन कार्रवाई फरमाई, फरमाया हल मिन मुबारज़िन, तो है जो हमसे मुकाबला करे, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, हमारा रब मौला है, तुम्हारा रब मौला नहीं है। हमें तुम्हें अपने उज़्ज़ा पर नाज है, अपने लात पर नाज है, अपने मनात पर नाज है, 360 बुतों पर नाज है, हमें अल्लाह की रहमत पर नाज है, यहाँ हम अपने नबी के रहमत पर नाज है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आंधी आई, आंधी से काफिरों के खेमे उखड़ गए और उनके घोड़े भाग गए, खेमे उखड़ गए और काफिर भाग गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे फतह अता फरमाई बगैर किसी कत्ल वग़ारत के। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा जिस उस यहूदी ने आगे पुकारा, चैलेंज किया, तो हज़रत अली मुर्तज़ा आगे बढ़े। वो यहूदी भी खंदक क्रॉस करके आने लगा तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने आपने 3 बार से उस काफिर को वासिल जहन्नम किया, उसको कत्ल कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूँ फतह अता फरमा दी। ये ग़ज़वा खंदक तीसरा इस्लाम का ग़ज़वा है जहाँ 10,000 मुशरिकीन मक्का, ये लोग यहाँ आकर मदीना मुनव्वरा में फ्रंट पर मीकात के पास पहाड़ है जिसका नाम जबल आयर है, वो जहन्नमी पहाड़ है जहाँ सहाबा कराम के कदम मुबारक लगे। सहाबा भी जन्नती, वो पहाड़ भी जन्नती है जबल उहद। फरमाया जहाँ कुफार थे और वहाँ काफ़ी दिन तक ठहरे रहे, मदीने में जासूसी करते रहे, तो फरमाया गया काफिर भी जहन्नमी, जिस पहाड़ ने काफिरों को पनाह दी है वो पहाड़ भी जहन्नमी है, वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, जहन्नम में जाएगा। जब आप बदर के ज़ियारत को जाएंगे तो इंशाअल्लाह उस पहाड़ को देख सकेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम पढ़ सकेंगे। वो उस पहाड़ का नाम जबल आयर है, जहन्नमी पहाड़ है, मीकात के पास है। तो ये जन्नती पहाड़ आपने देखा जो उहद पर हमने ज़ियारत की। कुरान पाक को देखना, काबतुल्लाह शरीफ को देखना और उहद पहाड़ को देखना बाइसे अजर और सवाब है। और इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह ताला दौरान खंदक एक सहाबी रसूल बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह मेरे पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबी तूने एक पत्थर बांधा हुआ है, तेरे नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं।
हमारे नबी ने इस ग़ज़वा खंदक के मौके पर सहाबा कराम ने फाके बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला देख रहे थे ये मंजर आपसे रह न गया, फ़ौरन घर गए, घर जाके अपनी खुशनसीब अहलिया को वाइफ को कहा कुछ खाने के लिए है। फरमाया और तो कुछ नहीं, एक बकरी का बच्चा है और 1.5 सेर जो काटा है। फरमाया बकरी का बच्चा मैं ज़िबा करके देता हूँ, आप खाना तैयार करें, मैं अपने नबी को दावत देकर आता हूँ जो हमारे नबी ने कई दिन से खाना नहीं खाया। तो बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ, अर्ज़ के या रसूलल्लाह चंद सहाबा कराम के साथ आ जाए और हमारी दावत ज़ियाफ़त कबूल फरमाए। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जैसे सुना, फरमाया तमाम सहाबा को ऐलान कर दो आज सबकी दावत हज़रत जाबिर के घर में है। हज़रत जाबिर ने हुक्म मुस्तफ़ा ऐलान तो कर दिया, लेकिन जब घर आया परेशानी के आलम में, खुशनसीब ज़ौजा ने वाइफ ने पूछा कि सहाबिया ने पूछा आप परेशान नजर आते हैं। फरमाया हमारे नबी को मैंने दावत दी है चंद सहाबा कराम, लेकिन हमारे नबी ने तमाम सहाबा को दावत दी, इसलिए दावत कम है, सहाबा 3000 है, ज़्यादा है, हम कहाँ से पूरा करेंगे। तो खुशनसीब सहाबिया ने क्या फरमाया, फरमाया जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा तशरीफ लाए तो बड़े बड़े सरदार दावत देते रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम किसी के पास तशरीफ ना ला गए, इसलिए आज हम खुशनसीब हैं, हमारी दावत को ज़ियाफ़त को कबूल फरमाया और हम गरीबों के घर आ गए हैं, सरकार आएंगे। तो लिहाजा आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, हज़रत जाबिर ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह खाना बहुत कम है। फरमाया घबराए नहीं, एक रिवायत के मुताबिक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्लाह वाले हाथों से खाना तकसीम करना शुरू किया और 3000 की जमात ने सहाबा कराम ने खाना खाया मगर खाना खत्म ना हुआ। हज़रत जाबिर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं, या रसूलल्लाह खाना बहुत वैसे का वैसे है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अहले मोहल्ला में तकसीम फरमा दें, तारीख गवाह है, मौरख़ीन लिखते हैं अगर वो खाना तकसीम फरमाने को मेरे नबी ना फरमाते तो जब तक चलाते चलता रहता, खाना कभी ख़त्म ना होता। यह अल्लाह के नबी का अजीम मोजज़ा है जो यहाँ खंदक के मौके पर ज़हूर हुआ, मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। और हुजूर अलैहिस्सलाम अब हम मस्जिद किबलतैन आ गए हैं। मस्जिद किबलतैन 2 किबलों वाली मस्जिद। हुजूर अलैहिस्सलाम, इससे पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है एज अ नॉलेज के तौर पर, हमारा सबसे पहला किबला कौन सा है? हमारा पहला किबला कौन सा था? बैतुल मुक़द्दस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, जो सबसे पहला काबा है, सबसे पहला अल्लाह का घर है वो काबतुल्लाह शरीफ है। और हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम तक जो हमारा किबला है वो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ ज़माना बाद से लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हिजरत तक जो हमारा किबला है वो बैतुल मुक़द्दस है, फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मदीना तय्यबा तशरीफ लाए, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे, या अल्लाह उम्मत मेरी है, बंदे तेरे हैं, या अल्लाह मेरी चाहत तो ये है कि जिस किबला को मेरे दादा सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, या अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरी उम्मत हमेशा उसी की तरफ तेरी इबादत करे, तेरी रियाजत करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया और फरमाया जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत के 15 माह बाद इस मस्जिद में तशरीफ लाए, यहाँ कबीला बनु सलमा आबाद था। जब हुज़ूर यहाँ तशरीफ लाए, नमाज का वक्त हुआ, एक मरीज की इयादत के लिए, वो मरीज़ा हजरत सय्यदा उम्मे बिस्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। आप हुज़ूर यहाँ तशरीफ लाए, नमाज का वक्त हुआ और ज़ोहर यासर 2 रिवायात हैं। हुज़ूर तशरीफ लाए और नमाज पढ़ाना शुरू की, पहली रकात बैतुल मुक़द्दस, दूसरी रकात बैतुल मुक़द्दस। जब तीसरी रकात के लिए हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, फरमाया क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। फरमाया हबीब आपका बार बार आसमानों की तरफ देखना मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा हूँ। ए हबीब जिस किबला को आप चाहते हैं अपना रुख अनवर उसी किबला की तरफ फेर ले। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी नमाज, 2 रकात बैतुल्लाह शरीफ की तरफ पढ़ी। मस्जिद किबलतैन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ किबला तब्दील हुआ, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहा जाता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नमाज एक पढ़ी और तब से जब से किबला तब्दील हुआ तो हमारा किबला अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह शरीफ है। तो यहाँ हम आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद से रिक्वेस्ट करेंगे कहीं करीब गाड़ी लगाएंगे आगे लेडीज़ गेट के साथ इंशाल्लाह, तो ज़्यादा इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। तो फरमाया यहाँ नवाफिल का हुक्म सिर्फ कुबा में है, लेकिन यहाँ नवाफिल का हुक्म नहीं है, लेकिन आए हैं तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले या ना मिले ये अल्लाह जानता है। तो यहाँ 2 रकात नफिल
नफिल अदा करेंगे तहियतुल मस्जिद। इसलिए ऐसी मुकद्दस मसाजिद में 2 रकात नफिल अदा करें तो ये मसाजिद क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगी, या अल्लाह तेरे बंदे आए मेरे ऊपर तेरी हम्द व सना की, तुझे सजदा किया, या अल्लाह इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। यहाँ नमाज अदा करना बाइस बख्शिश और बाइस मग़फ़िरत है। 2 रकात नफिल अदा करनी है। दोबारा वही अल्फाज दोहराता हूँ कि आपने हुजूर की सारी उम्मत को दुआ में याद रखना है। जो आए हैं अल्लाह उनका आना कबूल फरमाए, जो नहीं आ सके अल्लाह उनको आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की मग़फ़िरत कामिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आबा व अजदाद जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उन सब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। यहाँ 2 रकात सिर्फ 2